Hi everyone, welcome back to the India's most sincere learning destination, that is Swift Learn. And this is Vaishnavi back with you with this easy series for grade 10 from chemistry, that is mole concept and stoichiometry. So far we have already covered session 1 and session 2 as well. This is the third session in series in which we will be understanding again a few easy concept, right? So I hope you are quite clear with the Gale-Lussac's law as well, from where you are supposed to have questions as well. Make sure you try that. Okay, and today what all we are going to do, we are going to discuss about empirical and molecular formula. Okay, but before that, let's try to understand what the platform is offering you all. So yes, we do provide you live interactive classes in which you get a chance to interact with the teachers, right? So that you can have all your doubts cleared. Very important. Okay, and yes, we do provide personalized attention as well, because we believe when you have the full attention you perform great. Okay, and that is what we have ensured in our batches as well, with a maximum strength of 6 students. And there are multiple features which we have discussed so many times before, that is yes, to track your work, your progress, we have an academic mentor team, so that we want is you do excel in your performance, and that's what we ensure at our end as well. For the same, we provide the detailed progress report as well. When we say detailed, it is detailed in a manner like everything will be discussed, and in fact we try to work on our students as an overall. Okay, so with so many of things, you are accessible to take unlimited practice test, because in that way you will be actually mastering your examinations as well, right? And subjective test, so because at the end you have to give your examinations, it is going to help you there. So students, with so many of things, for what you are waiting for, just book your free trial class. Okay, and if you are here for the first time on the SwiftLearn YouTube channel, make sure you subscribe it and press the bell icon, because we are bringing so much of things every day, every hour for you. All right, and if you like the session, make sure you like it. You can share it with your friends as well. All right, okay, so let's begin with this mole concept in stoichiometry. In continuation, this is the third session, right? So लेट मी टेल यू कि आज हमारे पास क्या है इस चैप्टर में समझने को. आई होप द बेसिक थिंग इज क्लियर कि कंसेप्ट में हमने पिछले बार भी देखा था कि हम लोग गैसेस के करस्पॉन्डिंग कितना इजीली वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द परसेंटेज कंपोजिशन. व्हेन वी से कि हमें एलिमेंट्स के बारे में मेजरमेंट करना है, व्हेन द चैप्टर्स नेम इज स्टोइकियोमेट्री, means we are actually what we are going to do, we are going to learn about the measurement of elements present in a particular formula. तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहली बात तो ये फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, और ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये परसेंटेज कंपोजिशन आपको बहुत जगह पर आपने देखा होगा, बहुत जगह पे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग, है ना. अगर सपोज आप कुछ भी चीज को कुक कर रहे हो, सो व्हाट यू डू, द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर इन सम परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बेक अ केक. सो अगर आप 100 grams ऑफ फ्लावर ले रहे हैं, सो मे बी यू आर टेकिंग वन, let's say that 10 gram of baking powder in that. But if you have to make 200 gram of flour, that is if you have to bake a big cake, let's say that you are taking 200 gram of flour, obviously you will be doing the double of the baking soda and along with that baking powder as well. So what I'm trying to say over here is that percentage do matter, है ना. एवरी टाइम द परसेंटेज कंपोजिशन, इसमें कितना अमाउंट आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो इसी तरीके से आपने बहुत बार, अगर आप क्लोथिंग में अगर आप थोड़ा सा उसको टैग्स में अगर आप गो थ्रू करते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके पास बहुत सारे फैब्रिक में कुछ मिक्स काइंड ऑफ फैब्रिक भी होता है. जैसे कि यू मे हैव सीन this as a tag in your clothes as well.
इट इसमें लिखा होता है कि कितना परसेंटेज क्या क्या इसमें प्रेजेंट है. समटाइम्स दे आर द मिक्स ऑफ द क्लोथ्स. फॉर एग्जाम्पल इट मे हैव, लेट्स से यहाँ पे आपके पास लिखा है कि 100% पॉलिएस्टर. सम आर लाइक इन द मिक्सचर, so that the clothes will be as per उसी हिसाब से वो warm या cold होगा. So actually this is the percentage composition, means different components, different fabric कितना परसेंट present है हमारे clothes में. उसी तरीके से guys, we are having different elements present in a particular compound. For example, अगर हमारे पास if we talk of Na2CO3, so Na2CO3, sodium carbonate, right? It is having sodium carbon oxygen. But what I want to know is कि इसमें कितना परसेंट सोडियम है, कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है. ये कैसे पता चलेगा कि अमाउंट कितना है इसका. सो फॉर दिस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन. एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, प्लस आप इसको केमिस्ट्री लैब में अगर आपको ये नहीं पता, इट इज नॉट मीन्स a great thing is there which is you are unaware of. तो yes, percentage composition is going to help you there. तो उसके लिए आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए. केमिकल फार्मूला यू ऑलरेडी हैव द आइडिया. केमिकल फार्मूला जैसे कि अभी मैंने लिखा था आपके लिए Na2CO3. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट, what does it mean? Yes, it means that we have different elements present in a particular compound and along with it different atoms number as well. ठीक है, ये हमें ये दिखाता है कि इस कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, लाइक कितने एटम्स. लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि परसेंटेज ऑफ मास वाइज यहाँ पर कितना कंपोजिशन है, सो फॉर दैट आई नीड टू डू सम कैलकुलेशन एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. Okay, likewise you can write many different compounds over here like MgCl2 and so on. Okay, ठीक है, फॉर्मूला आपको क्लियर है. फॉर्मूला यू हैव लर्नड फॉर सो मेनी ऑफ कंपाउंड सो फार. अब बात करते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन की. परसेंटेज कंपोजिशन हमें कैसे पता चलने वाला है, मतलब कि इसका पहली बात तो मतलब क्या है. सपोज आपके पास आपने टी बनाया, so it will be having water, it will be having tea leaves as well, है ना. so now the question over here is कि आप water और tea leaves को कितना कितना यहाँ पर यूज करोगे, है ना. ऐसा तो नहीं है कि आपने इक्वल अमाउंट में 50% आपने वाटर लिया तो 50% आप टी लीव्स लोगे. नो, इट इज गोइंग टू टेस्ट बिटर, राइट. सो दिस परसेंटेज इज बेसिकली ये एक परसेंटेज कंपोजिशन ही तो है कि आप क्या करना चाहते हैं कि आप एक परसेंटेज का आइडिया ले रहे हैं कि कितना अमाउंट क्या प्रेजेंट होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द अनदर अमाउंट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज परसेंटेज कंपोजिशन, दैट बेसिकली इन अ कंपाउंड what is the percent of each of the element present. For example, I am having Na2CO3. So what is the percentage of sodium, Na, sodium element present in sodium carbonate? So that is what we mean by percentage composition. तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर मार्क्स, राइट. टोटल मार्क्स बाय marks you have scored multiplied by 100 because you have to calculate it in percentage. तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही. नाउ अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो कंपाउंड के लिए अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ H2SO4 का, सो पहले तो हमें इसका ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए कि ग्राम्स में ये कितना है. ओके, सो सपोज हमारे पास इसका ग्राम में वेट दिया हुआ है, दैट इज व्हाट यू विल बी टेकिंग अप. नाउ चूंकि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाउ यू कैन सी कि H2SO4 में यू हैव हाइड्रोजन, you have sulfur, you have oxygen. So what you will be doing up is you will be finding the percentage composition of each of the atom. तो आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज एलिमेंट हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाय द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर मुझे हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है तो मैं हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास,
मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मुझे सल्फर का मास फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग अप, I will be writing the mass of sulfur divided by the molecular weight of that compound। अगर मुझे ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग करना है परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट, सो व्हाट आई विल बी डूइंग अप, आई विल बी फाइंडिंग द टोटल वेट ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है, राइट तो इन 4 एटम्स का आप मास कैलकुलेट करोगे and that will be divided by the gram molecular weight of that compound multiplied by 100 because we have to find the percentage composition। तो ये तो आपके लिए थोड़ा थियोरी था। अब आते हैं हम कि एक्चुअल में क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आते हैं और हमें यहाँ पर क्या क्या करना होगा। Alright, so let's try to understand it with the help of an example। Here is a very first and easy example, so you will be having such kind of questions throughout। Let's read the question। So आपको बताना है इस क्वेश्चन में what is the percent composition of various elements present in K2CO3, that is potassium carbonate। पोटेशियम कार्बोनेट में डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपोजिशन कितना है वो आपको बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला याद है ना आपको, आई होप आपने लिख लिया हो, नहीं लिखा है तो मैं अभी आपके लिए दोबारा आपको बता दूंगी। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट, इट इज द मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्राम्स। अब देखिए, आपको कुछ एलिमेंट्स का मास वैसे भी मेमोराइज्ड होगा, बट आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपको मास याद रखना पड़ेगा हमेशा। इट विल बी गिवन टू यू, ओके ये आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ पोटेशियम की, सो इट इज यहाँ पे जैसे कि दिया है 39.0983। सो दिस इज एटॉमिक मास फॉर अ सिंगल एटम, लेकिन हमें ग्राम में बात करनी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यही हम ग्राम में लिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू। सो हियर वी आर फाइंडिंग द relative molecular mass, right? Let's try to do it। So how we will be finding it up? Yes, let's add them up together। All right, great। So we are having K2CO3। So what will be the relative atomic mass? That will be, since here are 2 atoms of potassium, so 2 will be multiplied with the mass of the potassium is 39.0983 plus carbon is having 1 atom only, so here we will be writing 12.01। हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है इन अ सिंगल फॉर्मूला ओवर हियर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16। सो लेट्स कैलकुलेट इट, व्हाट वी विल बी गेटिंग अप एज, वी विल बी गेटिंग 138.21। ओके ये हमने रिलेटिव मास कैलकुलेट कर लिया 138.21। ऑलराइट, ग्रेट। नाउ अब हमें ये तो समझ में आ गया कि 138.21 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है टोटल पोटेशियम कार्बोनेट का। अब हमें ये पता करना है कि हमारे पास K2CO3 यानी कि इस फॉर्मूला में हमारे पास अगर हम इसको 100 ग्राम में फाइंड आउट करना चाहें, 100 ग्राम में हमारे पास कितना पोटेशियम होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है पोटेशियम के लिए। सो 138.21 ग्राम में आपके पास 2 पोटेशियम के एटम्स प्रेजेंट थे ना, मतलब अगर हम K2CO3 की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि ग्राम्स में आपके पास 39 जो कि पोटेशियम का मास था इंटू 2, इतना हमारे पास ग्राम्स में पोटेशियम है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 100 ग्राम में। वाई 100 ग्राम, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज में, राइट। सो 100 ग्राम में हम क्या कहेंगे कितना प्रेजेंट होगा, इधर आप 1 ग्राम में निकाल सकते हो। सो 100 ग्राम ऑफ K2CO3 विल बी हैविंग हाउ मच पोटेशियम, सो 2 into 39.0983। परसेंटेज कंपोजिशन आप ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 into द मास ऑफ जितने एटम्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे पोटेशियम के 2 एटम प्रेजेंट है, सो 2 into मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ K2CO3, सो दैट इज गिवन एज जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 138.21। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज में।
बहुत ही सिंपल है. Yes. So now we can easily calculate it, right? So the answer will be, it can be divided easily. So the answer will be 56 point nearly 6%. So 56.6% आपके पास आ गया है फॉर 100 ग्राम. यानी कि आप कह सकते हो कि 100 ग्राम में 56.6% आपके पास पोटेशियम प्रेजेंट होगा. राइट. नाउ मूविंग अहेड वी हैव टू फाइंड फॉर कार्बन एज वेल. तो कार्बन के लिए भी आप कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू अगेन. आपको हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना है. तो पोटेशियम का हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ फॉर कार्बन, सो व्हाट वी विल बी डूइंग अप 138.21 ग्राम में यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है. सो कंटेन्स हाउ मच? 12 ग्राम. कार्बन का मास आपको 12 गिवन था. कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन. Right? Now we have to calculate for 100 gram. So 100 gram will be of K2CO3 will be containing how much of carbon? 12 upon 138.21 multiplied by 100 and that will be in percentage. Super simple. बस आपको mathematical calculations यहाँ पे रहेगा, but the steps are super simple and that is 8.7% nearly. Alright. Likewise we have to calculate for oxygen. So what we will be doing up? अब आप लोग को आइडिया मिल गया है कि क्या करना है. बहुत ही सिंपल काम है. Just you have to do for oxygen. So 3 multiplied by, because here are 3 atoms. Oxygen का आपको मास दिया हुआ है 16 ग्राम. That will be divided by 138.21 and it will be multiplied by 100. Right? Super simple, and it will be giving you the mass for the percentage composition for oxygen, that is 34.7. So in this way we will be calculating the mass for each. आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपके पास एटॉमिक मास दिया रहेगा. आप उसके करस्पॉन्डिंग पहले आप कंप्लीट का आप mass in grams find out kar loge. Then what you will be doing up, then you will be calculating the percentage composition for each depending upon the number of atoms present. Super simple, right? Great. और एक बड़ी सिंपल सी बात, आपके पास जितना भी यहाँ पर अमाउंट प्रेजेंट है, इफ यू विल बी एडिंग इट ऑल अप, how much it should be? It should be adding up to form 100%, right? We can try it out as well. Alright, so that's how it will be. So we have got the percentage composition. I hope this is quite clear, right? Now we are moving ahead to know what is empirical and molecular formula. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी मेड सुपर सिंपल ओवर हियर. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेज, क्या कहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला? दैट व्हाट elements are present in a particular formula but in a simplest ratio. For example, मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे. जैसे कि मेरे पास है सपोज N2H4 हाइड्रोजीन. यहाँ पर it is showing you that it is having 2 atoms of nitrogen and 4 atoms of hydrogen, right? But this is not an empirical formula. Why? Because the number of atoms are not in the simplest ratio. Alright, the number of atoms are not in the simplest ratio. So what we have to do, we have to find that what is the simplest ratio. So empirical formula gives you the idea about 2 important things. The very first important thing, it gives you the idea of number of atoms. Basically we can say the types of atom, what atoms are present. The second idea it gives about it, the simplest ratio of elements present in a particular formula. अब आप सोच रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसमें डिफरेंस क्या है. मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको एटम्स के बारे में बताता है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. ठीक है, N2HO4 दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि इफ आई टॉक ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द सेम इट विल बी NH2. इस बात का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा. यानी कि
आपको एटम्स का तो आइडिया मिल ही रहा है यहाँ पे कि व्हाट एटम्स आर प्रेजेंट एंड एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको एलिमेंट्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी NH2 whereas molecular formula of the hydrogen will be N2H4. That's how the difference between empirical and the molecular formula is. So क्या कहता है empirical formula? It is the simplest formula which gives the simplest ratio in whole number, okay, of atoms of different elements present in a molecule of the compound. Okay, now empirical formula बहुत जगह पे आपको molecular formula जैसा दिख सकता है, पर ये हमेशा ज़रूरी ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं. I have just given you an example, right? So how to find the empirical formula, that is a question. और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि empirical formula आपको फाइंड आउट कैसे करना है. बहुत सिंपल स्टेप है, ध्यान से समझना है आपको, एंड इट विल बी ऑन योर टिप्स. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए हमेशा परसेंटेज कंपोजिशन. अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन रहेगा, हमेशा गिवन रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन. अगर नहीं गिवन है तो आपको पता ही है आप कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको जस्ट मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, एटॉमिक मास, तो आपको पता है परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करना है. वी जस्ट हैव लर्नड इट. तो परसेंटेज कंपोजिशन से अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. ऑलराइट, चलो तो समझते हैं यहाँ पे कि अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज कंपोजिशन से हम कैसे करेंगे. So here we are. We have to find the empirical formula for Zn and Cl and we are given the percentage composition. हमें 47.8% given है zinc का and chlorine is given as 52.2% is present. Now आपको बनाना है एक टेबल. टेबल में you have to write element. The first thing will be element. The second thing is परसेंटेज कंपोजिशन. आपको क्या क्या दिया है, एक तो एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, जिंक एंड क्लोरीन. द सेकेंड थिंग विल बी परसेंटेज कंपोजिशन जो कि आपको गिवन है 47.8% एंड 52.2%. नाउ द थर्ड थिंग विच यू हैव टू राइट इज देयर मास. मास, that is the mass of Zn and chlorine, that is atomic mass. Okay, so the first thing is element, the second thing is percentage mass, and third is atomic mass. That is for zinc it will be given to you, it is 65. You can try to memorize for a few as well. questions करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा. so zinc के लिए it is 65, chlorine के लिए 35.5, right? अब आपको पता क्या करना है, अब आपको करना है पता नंबर ऑफ एटम्स का. कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, सुपर सिंपल. आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, परसेंटेज मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास. ऑलवेज यू हैव टू डू इट. ठीक है, सो 47.8 यानी कि आपको क्या करना है, परसेंटेज मास से एटॉमिक मास को डिवाइड कर देना है. इन दोनों को आपको डिवाइड करना है. बड़ा सिंपल हो गया. एलिमेंट आपने लिख दिया, परसेंटेज मास आपको गिवन रहेगा. अगर नहीं तो फिर आपको मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास दिया रहेगा, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जनरली गिवन रहता है क्योंकि हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो अगर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज मास आपको दिया ही रहेगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. सो 47.8 एंड 52.2 दिस वाज गिवन. एटॉमिक मास आपको या तो याद रहे या फिर आपको गिवन रहेगा. सो एटॉमिक मास है 65 एंड 35.5. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सुपर सिंपल, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. कैसे फाइंड आउट करेंगे, 47.8 डिवाइडेड बाय 65, राइट? और यहाँ पर 52.2 डिवाइड बाय 35.5. ठीक है, सो इट विल बी 0.73 and this will be 1.46. It can be done easily. आप easily 65 से डिवाइड कर सकते हैं 47.8 को. आप डेसिमल को बाद में प्लेस कर सकते हैं. 65 can be divided by 478 easily. All right. Now you can apply so many easy tricks as well to divide it quickly. Now we have got the number of atoms like 0.73, 1.46. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इस तरीके का रेशियो मिले.
है ना, इस तरीके के नंबर ऑफ एटम्स मिले। तो अब क्या करना है, इसके बाद बड़ी सिंपल सी बात करनी है आपको, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ध्यान से, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसमें सबसे जो छोटा नंबर आपको दिख रहा है उससे आप सबको डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट नंबर से आप डिवाइड कर दो। या फिर तो यहाँ पर आपको 0.73 गिवन है, 1.46 और तो कोई एलिमेंट गिवन नहीं है, तो आप कंपेयर करेंगे 0.73 और 1.46 में छोटा नंबर कौन है, 0.73। सो 0.73 से आप सबको डिवाइड कर देंगे जितने भी प्रेजेंट है टू गेट अ सिंपलेस्ट रेशियो। सो 0.73 डिवाइड by 0.73 it is giving you 1. 0.73 divide by sorry 1.46 divide by 0.73 is giving you 2. सिंपलेस्ट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, सो 1:2। सो यहां से हमें क्या मिल गया कि जिंक का आपके पास, जिंक एंड क्लोरीन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। जिंक एंड क्लोरीन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो यहां से आप फॉर्मूला कितने ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, जिंक का 1 एटम in the simplest ratio and Cl2. This one can be omitted, need not to write. So ZnCl2 will be the formula. Hope you got the step. Take a screenshot. You just have to write the elements. Percentage mass will be given, atomic mass will be given. Else you can try to memorize with the time as well. Now we have to find number of atoms. We just have to divide percentage mass by atomic mass. Super simple. जो भी आपके पास रेशियो, जो भी आपके पास नंबर आता है उसको आप सबसे स्मॉलेस्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दो। दैट इज यहाँ पर 0.73 है। अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप, अगर मैं Na2CO3 की बात करूँ तो आप सबसे कम यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग फिर आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि यही एक्चुअल फॉर्मूला हो। ओके, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट गिव्स यू द सिंपलेस्ट रेशियो, Zn is to Cl2, Cl is giving you 1:2। तो अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। ये क्या कहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करता है एक्चुअल नंबर पे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ये आप कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिक आइडिया आपको एम्पेरिकल के लिए क्लियर है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके हाथ पे है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको करना वही है, एम्पेरिकल वेट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको, आपके पास एम्पेरिकल वेट पता होना चाहिए बाय इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें ZnCl2, तो आपको इसके, अगर ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो यहाँ से आप इसका इजीली एम्पेरिकल वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज 65 + 35.5 × 2। सो इस तरीके से आपके पास जो भी कंपाउंड गिवन होगा आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब whatever molecular weight will be given to you, ठीक है, molecular weight, और आपने एम्पेरिकल वेट तो अभी निकाला ही है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसको हम कहेंगे n। जरा एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे कि मैंने आपको N2H4 और NH2 की बात कही थी, राइट। NH2 is the empirical weight, empirical formula, whereas N2H4 is molecular formula, right। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो सकते थे, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, बट अगर ये मल्टीप्लाइड हो जाए बाय 2 से, यानी कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है ऑफ अ नंबर दैट इज n, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 9। ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पर लिखूंगी सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो करना क्या है, आपको मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है एम्पेरिकल वेट से। जो भी आपके पास n ये नंबर आएगा वो ही आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई करना है विद ईच ऑफ द एलिमेंट्स टू गेट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला। Let's try to imply it in the questions as well. Questions में ये कैसे यूज होने वाला है, let's try to have a look. तो यहाँ देखो,
आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है बोरॉन हाइड्राइड का BH3. दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं आपको बता चुकी. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एम्पेरिकल वेट. एम्पेरिकल वेट कैसे निकालेंगे आप? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, क्योंकि बोरॉन BH3 बोरॉन हाइड्राइड में आपके पास बोरॉन है प्लस हाइड्रोजन, इंटू 3 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. राइट, सुपर सिंपल. यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे. सो इट विल बी, या सो इसके करस्पॉन्डिंग 10.8, हाइड्रोजन का यू हैव 1. सो एम्पेरिकल वेट will be 10.8 plus 3 into 1, that is 13.8. empirical weight is this. बड़ा सिंपल है आपके लिए अगर आपको एटॉमिक मास सबका पता है. now we have given that molecular formula is, we have to find, and the measured mass is 27.66. so 27.66 is the measured mass. What we have to do? Super simple, we just have to divide it. Yes, because we have to find that n. यही बताया था मैंने आपको, n क्या है? molecular weight by empirical formula और weight है ना. तो molecular formula का weight आपके पास 27.66 given है आपको, और आपको एम्पेरिकल वेट हमेशा निकालना रहेगा. दैट इज 13.81. डिवाइड कर लिया आपने, तो n आपको हमेशा एक होल नंबर ही चाहिए. n हमेशा आपको एक होल नंबर ही मिलेगा. सो एंड दैट इज 2. ओके, नाउ वी नो हमें क्या करना है. एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे निकालते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला होल मल्टीप्लाइड बाय n. Now empirical formula was BH3 और n हमारे पास कितना आ गया? 2. क्यों आया 2? Because molecular formula divide by empirical formula is giving you 2. आपने दोनों weight को divide कर दिया. n is 2. So the molecular formula will be B2H6. So ये actual number of atoms present है. Empirical formula is the simplest one. Alright, this is super important. Try to practice a few questions from this. Okay, to get the concept. So I am giving you the elemental composition of human body as well, because the body has different elements present in it. So here few of the elements are given, such as oxygen, carbon, hydrogen, and you can see that our body contains much of oxygen. Okay, so I hope you got the understanding of percentage composition, empirical formula, molecular formula, right? Just try to revise once and it will be on your fingertips. So with this, I am giving you one question as well to do in your homework. Here is it. Try to find it out. Okay, you have to find the molecular formula for this question. Okay, so also percentage composition of each element in water. It has hydrogen and oxygen. Try to do it. Okay, so thank you everyone for joining in. We will be bringing up the next session in which we will be covering up some again important concept. Stay tuned, right? And make sure you subscribe the channel as well. Okay, so with this note, I am saying you goodbye and take care and happy learning.